Okay, good evening, all of you. And we have amidst us Avi sir, Avirat Chete sir. Both of us belong. हम लोग दोनों एक दूसरे को गुरु बंधु बोलते हैं because our teacher happens to be same respected Chete sir. And बहुत सारी जगहों पर we are associated with each other. Like we have this Maharashtra Class Owners Association, wherein Avi sir is the chairman of this particular Diva Kasara zone. Preeti Chauhan has muted you. Ishu sir. सॉरी, तो प्रीति चौहान मुझे म्यूट नहीं करना प्लीज. ओके, थैंक यू. So it happens. Anyways, so Avi sir happens to be a teacher without saying. He is a motivational speaker, a storyteller, wildlife photographer, entrepreneur, author, poet, blogger, and a happy soul. Need not introduce him what is called as more than this. He is a multi-talented personality and definitely he will share in his session that right from when this lockdown started, just with the help of intention of helping lot of people at large, especially the youngsters, he conducts a Insta live at 8 p.m. every day. Now, I tell you honestly, मैंने भी जब ये वेबिनार सीरीज चालू किया था, we thought it's a matter of 21 days we can pull it through. But as and when days are progressing, I tell you there are two things. हमको कंटाला नहीं आ रहा है. We are getting newer topics, we are getting newer energy, wherein we feel कि so many areas are still to be explored. We do 3 webinars a week, and hats off to him. He does 7 sessions forums. Plus, at the same time, one thing which I always relate to Avi is that both of us are something called as student for life. We believe in continuous process of learning. So, without taking much of your time, Avi sir, you can take forward the session. Thank you, sir. So, guys, good evening. I hope you all are having a great day so far. And if you have not had a great day so far, we will make sure that this these 45 minutes to 1 hour are something that add value, add some knowledge, and most importantly, they make you smile. Okay. Well, thanks to all of you who have replied to my good evening now as well as earlier. सो बार बार ये टर्म आपने सुनी होगी सॉफ्ट स्किल्स सॉफ्ट स्किल. आई एम श्योर स्पेशली आप में से जो लोग ग्रेजुएशन लेवल पे है और पीपल हु हैव ऑलरेडी हु हैव ऑलरेडी पास्ड आउट, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मोर देन योर हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स हार्ड स्किल्स आर रिक्वायर्ड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ये हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स क्या है. तो आप जो डिग्री अचीव करते हो, आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेते हो, आप सीए बन गए, सीएस बन गए, या कोई साइंस स्टूडेंट होगा वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो ये जो पढ़ाई करके आप क्वालिफिकेशन अचीव करते हो, जो टेक्निकल स्किल्स आप अचीव करते हो, दे आर नोन एज हार्ड स्किल्स. Why? Because they are not because they are hard to achieve. Of course, they are hard to achieve also, but because they can be measured. These skills can be measured. ये स्किल्स को आप परसेंटेज में, डिग्री में, ग्रेड्स में आप इनको वैल्यू कर सकते हो. बट देन आज अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाओगे, आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्यू डेज बैक हु इज अ वेरी सीनियर पर्सन इन एडलवाइज. तो एडलवाइज में उसके पहले वो 7-8 साल एचएसबीसी में था. एवरी टाइम दे टेक इंटरव्यूज, दे मेक श्योर दैट दे सिलेक्ट कैंडिडेट्स हु आर हैविंग फैंटास्टिक soft skills. Now, how do you know what are soft skills? तो soft skills basically आपके interpersonal skills. आप लोगों के साथ कैसे काम कर सकते हो, आप टीम मेंबर अच्छे हो कि नहीं, आपका communication skills कैसा है,
आपकी पर्सनालिटी कितनी कॉन्फिडेंट और कितनी स्ट्रांग है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है व्हेन यू वांट टू गो इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड अनफॉर्चुनेटली there are no strict tools or there are no fixed tools to measure them. That is why they are known as soft skills. As commerce students, आपको पता है what is intangible? How do you define something intangible? Can you quickly chat and tell me? I don't know if I can see the chat in this version. I think ऐसे करूँगा तो दिखेगा. Yeah. Can you tell me what is intangible? Yes, what we cannot see or touch, right? Pranjali, Samiksha, yeah, a lot of you know all the names. Okay, Pranjali, Samiksha, Ketki, Samyukta, Gopi Krishnan, Bhuvaneshwari, Balaji, Sandhya, Sakshi, Prerna, Deepika, Aaron, Aditi, Vishnu, Nandini, Smitha, Sonia, Diksha, Srishti, Ketki, Rahul, Ishika, and Chanchal. All of you are perfectly on the dot there. So something that cannot be seen or touched, but something that can be felt. You know, it's like Ishwar, like God. God is intangible. Those of you who believe in God, you cannot see God or you cannot touch God, but you can feel the presence of God. तू न जाने आस पास है खुदा. बराबर. Similarly, in commerce, we have learned about goodwill, about patents, about copyright, about trademark. These are assets which cannot be seen or touched, but we can feel them. And one more thing that you cannot feel, love. Of course, love बोला तो लोगों की आंखें चमक जाती हैं. I'm not talking only about one aspect of love, that is romantic love. You love your parents, you love your brother, sister, you love your teachers, you love your best friend. Am I right? तो आपको उनके बारे में जो प्यार फील होता है वो भी दिखता नहीं. Right now I am sitting comfortably in an air conditioned room. तो ये जो AC है उस AC का कूलिंग मैं नहीं देख सकता. It is intangible. The AC is tangible. So the soft skills, my dear friends, your soft skills are also intangible. They cannot be seen or touched, but they can be felt. And if you are appearing for a job interview, or even after you have got the job, when you are working in the office, your HR people, your human resources people, your bosses are continuously going to evaluate your soft skills. आपको इनफैक्ट इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक you come across as a very dumb fellow. I don't think you are good for this job. Now, what they are doing is they are actually gauging your reaction. They are checking how you will react. And there your soft skills come into play. So if at that time you get irritated or you show it on your face that you didn't like the question, or you are like, अच्छा बेटा तू मेरे को ऐसा बोलेगा, तुला माहित नाही दादा कोण आहे करे, हाँ इकडे दादा मी आहे. So if that kind of a reaction comes on your face, you are caught. You are caught. So soft skills क्या है? सबसे पहले 1972 में ये टर्म दुनिया के सामने आया था. यूएस आर्मी का एक ट्रेनिंग मैनुअल, ओके, यूएस आर्मी का एक ट्रेनिंग मैनुअल दुनिया के सामने रखा गया. इट वाज मेड पब्लिक बिकॉज इट वाज थॉट दैट ये जो स्किल्स है ये सिर्फ आर्मी के नहीं, ये रियल वर्ल्ड के भी काम में आ सकते हैं. जो नॉन यूनिफॉर्म्ड पीपल है उनके भी काम में आ सकते हैं. And that is why the corporate world and the corporate trainers got access to the term called as soft skills. And recently, the Stanford University and Carnegie Mellon University, उन्होंने एक सर्वे किया था of the Fortune 500 company CEOs. Are you aware of the Fortune 500? ये term आपको पता है? Fortune 500 क्या है? Do you know that? If anyone knows, you can type it down in the chat section. Okay, since the first 4 or 5 replies are no, I'll not waste your time and I'll get to telling you what is Fortune 500. So the Fortune 500 are the world's top 500 companies. Okay, based on their market capitalization, based on their volume of business, based on their reach, the top 500 companies of the world. They are the Fortune 500 companies like Google, Apple, Amazon, these are the world's top 500 companies. Of course, Reliance and Tata also rank there. तो ये 500 कंपनीज के CEOs यानी टॉप बॉसेस को
ये सर्वे में स्टैनफोर्ड, आपको ये नाम पता होगा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज, एंड कार्नेगी मेलन, अगेन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, टॉप 5 में इनका नंबर आता है। ये दोनों यूनिवर्सिटी ने सर्वे रन किया और 500 सीईओज, जो दुनिया के टॉप 500 सीईओज हैं, उनको पूछा गया था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाहिए तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड 75% of those 500 CEOs they replied that soft skills के वजह से वो दुनिया में इतना आगे बढ़ पाए। 75% of the world's top 500 CEOs are saying that long term success चाहिए तो you need to have soft skills, and not just have soft skills, master soft skills. Okay, so my dear friends, इतना इंपॉर्टेंट। अब ये सॉफ्ट स्किल्स क्या है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया कि योर इंटरपर्सनल स्किल्स, हाउ यू डील विद पीपल, हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ यू एड्रेस चैलेंजेस, what happens to you when you are suddenly faced with an uncomfortable situation, how do you react to it, how do you respond to it. So I have made a mnemonic. Okay, there are 10 skills, 10 skills है। मुझे mnemonics बनाने को बहुत पसंद है। mnemonics मतलब short forms. So for example SOFT, तो S से एक पॉइंट आएगा, O से एक पॉइंट आएगा, F से एक पॉइंट आएगा, and so on. That is what is called a mnemonic. I'll just type the spelling for you. Okay, this is what is mnemonics. Okay, the first M is silent. So coming to what I was saying, mnemonic का मतलब just a minute. Yeah, so self. Okay, I'm going to go with the first S. I'm going to go run through this a bit. थोड़ा आपको फास्ट भी लग सकता है क्योंकि ये मैंने एक्चुअली 2 घंटे का सेशन लिया था इंस्टाग्राम पे, बट बिकॉज मेरा 8 बजे वापस सेशन है, इसलिए मैंने विशु सर को रिक्वेस्ट किया था कि भाई 7 के बदले 6:30 करो। तो पहली बात तो सॉरी टू ऑल ऑफ यू जिनका ये क्लॉक 7 बजे का सेट होगा, आपको आज आधा घंटा मेरी वजह से पहले आना पड़ा, बट आई विल मेक श्योर इट इज वर्थ इट। सो एस, those who are jotting it down, those who are writing it down, S is self motivation and other work ethics. Self motivation and other work ethics. So what comes under work ethics? Ethics ये वर्ड तो सबने सुना है। Ethics का मतलब क्या है? What do you mean by ethics? Values, right, Pranjali, Aaron, morals, Gopi Krishnan, you're right. Values and morals, perfect. All of you answered right, fantastic. So ethics, moral values, principles, हमारे नीति मूल्य, ओके, तो काम करने से रिलेटेड भी कुछ एथिक्स होते हैं। Now what ethics are required? One, you need to be hardworking. You need to be a hard worker. No organization will hire you if you are a lazy bum. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ दुनिया के किसी इंसान के 2 सबसे बड़े दुश्मन, आलस और देड़शानपना। 2 biggest enemies are laziness and over smartness. जो आदमी ये दोनों चीजें अपने लाइफ से निकाल देगा वो सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस है, और जिसकी लाइफ में दोनों भरे हुए हैं वो मुंह की खाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग। सेकेंड, यू नीड टू बी विलिंग टू वर्क। अंदर से आना चाहिए, आपको हर बार धक्का मारने का नहीं, धक्का स्टार्ट नहीं। यू नीड टू मेक श्योर दैट आप खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो। You need to be willing to work, willing to learn. That is one more important work ethic. Third thing, you need to be loyal. You need to be loyal to your organization. You have to make sure that you stick around. हर 2 साल में जॉब बदलेंगे तो आप लाइफ में बहुत ऊपर नहीं जा पाएंगे। Unless there is something that is not allowing you to grow. उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ग्रोथ अगर रुक गई है और आप निकलना चाहते हो तो बात अलग है, बट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रो करने के टूल्स दे रहा है, जैसे अभी विशु सर के टीम में भी कितने सारे टीचर्स होंगे जो 20-20 साल पुराने, 15-15 साल पुराने हैं। उनका नॉन टीचिंग स्टाफ कुछ लोग तो स्टार्टिंग से। व्हाई? बिकॉज दे आर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन. दे आर पीपल हु आर गेटिंग गुड एटमॉस्फेयर टू वर्क एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग बाय बीइंग लॉयल. सो लॉयल होना बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेटेड, ओके, सेल्फ मोटिवेटेड मतलब आपके अंदर आग होनी चाहिए। बाहर से मैं विशु सर कितना भी मोटिवेशन देंगे, बट आपके अंदर अगर एक चिंगारी है तो उस चिंगारी को हवा देके हम उसको ज्वाला बना सकते हैं, बट अंदर ही कुछ नहीं है, ठंडे शोले हैं, कोयला पूरा ठंडा है, उसके ऊपर पानी गिर चुका है, बारिश हो चुकी है। यू कांट वेक अप अ डेड मैन,
Okay, so you need to be self motivated all the while. You need to have motivation within you, then external motivation can work. Okay, and बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें और ये फर्स्ट पॉइंट में, यू नीड टू बी पंक्चुअल. देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे, घड़ी के कांटे रुकने वाले नहीं है और आपको उसके साथ चलना है. when I say punctual, it applies everywhere. even आपके 12वीं के लेक्चर्स, आपके टीवाई के लेक्चर्स, आपके सीए के लेक्चर्स, एवरी टाइम लेक्चर 11 बजे गए तो 10:55 को आप रेडी चाहिए. 11 बजे जब सर लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आप 11:05 को आ रहे हो. नेटवर्क इशू है जो भी है, पहले से ट्राई करते रहो. बी ऑन टाइम. दैट इज कॉल्ड जर्मन प्रिसीजन. जर्मन पीपल दे आर ऑलवेज ऑन टाइम. आपने उसको 12 बजे का टाइम दिया ना, बराबर 12 बजे वो नॉक करेगा, whether you are ready or not. 11:59 को भी नहीं, 11:59 भी नहीं, 12 o'clock. पंक्चुअल होने की आदत अभी से डालो. ओके, लर्न फ्रॉम मदर नेचर. बराबर सीजन साइकिल चेंज होता है. अभी जून महीना आ गया, बारिश के आसार अपने को दिखने लगे. मदर नेचर का टाइम टेबल परफेक्ट है. द सन राइजेस एवरी डे, सेट्स एवरी डे, बराबर. So the timetable has to be followed. You need to be punctual, and the last thing, you need to be regular. ओके, और ये आदत स्टूडेंट डेज से डालोगे ना तो आपके लिए बहुत बहुत फायदे का होगा. एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स कभी कभी डेवलप करनी चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, बिटवीन द एजेस 1 to 9. 1 से 9 के एज के बीच में अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स का आदत लग गया, नथिंग लाइक इट. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. अब चलो आप बोले सर इसका मतलब वी आर टू लेट. प्रैक्टिस करने से अभी भी आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स आ सकते हैं. बट अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन है, अगर आप फ्यूचर में पेरेंट्स बनते हो, तो डेफिनेटली याद रखिएगा बिटवीन 1 to 9 अगर आपके बच्चों के अंदर, सिंपल एग्जांपल, छत्रपति शिवाजी महाराज, he got to learn about all the amazing things of life, all the soft skills as well as the hard skills at a very young age, from his mother as well as from his guru. उस एज में वो हुआ तो it became a way of life for him. Everything that he did, he used those skills. Am I right? And that is the reason why he became such a great legend. And every successful person, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, उनका जो संस्कार बचपन में हुए वो उनको बहुत कम है. अब आपके ऊपर वो संस्कार हुए नहीं हुए ये आज का पॉइंट नहीं है, बट आज के बाद यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट आई कवर एस, सेल्फ मोटिवेशन एंड अदर वर्क एथिक्स, बहुत जरूरी है. देन ओ फॉर ओरल, रिटन and other forms of communication. Oral, written and other forms of communication. Communication skills बहुत 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 जरूरी है. Majority millennials मतलब आपका generation Y, most of you fail to achieve your true potential. आप बहुत talented है, हमसे ज्यादा आपका generation fast है, बट आप उतना सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, सही टाइम पे, सही इंसान से और सही तरीके से. राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट वे. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इवन आप नोट करोगे अगर आपके कुछ रिलेशंस फेल हुए, आइदर योर फ्रेंडशिप हैज फेल्ड और योर लव रिलेशन हैज फेल्ड और यू आर नॉट कनेक्टिंग वेल विद योर पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग perfect communication skills. सर हम कैसे कर सकते हैं? Learn from people who are good communicators. You can learn by observing me today for this 1 hour. You can learn from Vishu sir every day, every time he speaks with you, and all the other experts that he's inviting. Then you have such wonderful tool called the internet. Go on YouTube. There is a wonderful app called as TED, TED, TED. TED Talks are the platform for the world's best speakers. I was fortunate कि थाना में एक TED यूएस में जो होता है वो TED होता है यूएस और कनाडा में, और वहां से बाहर जो प्लेटफॉर्म है जहां TED वाले अपना लाइसेंस देते हैं, those talks are called TEDx talks. तो मैंने भी एक TEDx talk दिया है. Be a traveler, not a tourist. So please understand that आपको अगर वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर्स के स्पीचेस सुनने हैं on variety of topics A to Z, just download the application called TED, TED. ओके, एंड उस प्लेटफॉर्म पे, उस ऐप पे जाओगे तो आपको अलग अलग टॉपिक्स पे सैकड़ों हजारों स्पीचेस मिलेंगे.
इफ यू डोंट हैव अ स्मार्टफोन, नो प्रॉब्लम, आप अपने कंप्यूटर पे जाके टेड के वेबसाइट पे जाके या यूट्यूब पे भी जाओगे तो भी आपको टेड के बहुत सारे टॉक्स दिखेंगे. Find out those talks and learn. On the on YouTube or Insta, on Facebook, you have Sandeep Maheshwari, you have Vivek Bindra, you have Tony Robbins, you have Vishen Lakhiani from Malaysia, Indian आदमी है Vishen Lakhiani, superb speaker. Then you have Gary V. अगर थोड़ा बहुत गाली गलौज आपको हजम होता है तो Gary V, GARYVEE. Gary V is a US entrepreneur and वो बात करता है, बट वो उसके हर सेकंड सेंटेंस में वो वर्ड होता है WTF में, जो F होता है ना वो वाला, बट अमेजिंग. मतलब गैरी वी को सुनोगे तो ईयरफोन्स डाल के सुनना, नहीं तो मम्मी पापा फटके देंगे तुमको. हाँ, बट दीज पीपल आर ऑसम कम्युनिकेटर्स. सो लिसन टू दीज कम्युनिकेटर्स, फाइंड आउट व्हाट मेक्स देम स्टैंड अपार्ट. और आप इन लोगों के डायलॉग सुनोगे, इन लोगों की बातें सुनोगे तो आपको धीरे धीरे वो स्किल्स आएंगे. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग. Stand in front of a mirror. If you have a 3, 4, 5 family members, or if your parents understand English, मम्मी पापा को अपना ऑडियंस बनाओ, उनसे उनको प्रेजेंटेशन दिया करो. तो आपको बात करने को आना चाहिए ठीक से, ओरल कम्युनिकेशन. सेकंड, रिटन कम्युनिकेशन. अच्छा ईमेल ड्राफ्ट करने को आना चाहिए, फॉर्मल ईमेल ड्राफ्ट करने को आना चाहिए, बहुत जरूरी है. नहीं तो आप 12 के भाव में जाओगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं टिक नहीं पाओगे, एंट्री ही नहीं ले पाओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. अगर आपको आपका सीवी बनाने को बोला तो किसी का सीवी कॉपी पेस्ट मत करो. आप फाइंड आउट करो आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, अकॉर्डिंगली अपना सीवी बनाओ. यस, यू मे टेक गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स बट डू नॉट कॉपी पेस्ट समवन एल्सेस, क्योंकि अपना आत्मा उतरना चाहिए उसमें, आपका सोल, तुमचा अर्क त्यात उतरला पाहिजे. दैट इज व्हाई ड्राफ्ट योर ओन सीवी. 50 बार ड्राफ्ट करो, 49 बार गलत होगा, 58 टाइम बराबर आएगा. डोंट वरी. Don't be afraid to fail. Be afraid not to try. It's okay to fail. All big achievers in this world have failed once in their life, or maybe a dozen times. Okay? एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट करने का कोशिश किया था, he was already a world famous inventor, और वो कई बार फेल हुए, हजारों बार फेल हुए. And when a reporter asked him, so Mr. Edison, how did it feel to fail so many times? I'm sure it must have been very frustrating. एडिसन का जवाब था, not at all. I learned 9,999 ways of how not to make a bulb. So even in that failure, Mr. Edison said that I have learned something new. Failure is not something wrong. Failure is okay, so long as you don't give up. So oral communication, written communication, and presentation skills. You must be able to present. You may be having a brilliant idea. You may be having an awesome product, but if you are not able to present it well, it's a waste. That is the greatest tragedy of the world. There are many people who have amazing ideas, but just because they can't present it properly, they do not get investors who will fund their project, or they are not picked up by good companies. और आपके पास पोटेंशियल है और अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए तो मतलब क्या है? As Bill Gates said, if you are born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's definitely your fault. तो अगर आपके अंदर इधर रॉ मटेरियल है, इधर अगर जज्बा है, तो वो दोनों को आपको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने को आना बहुत जरूरी है. Otherwise, you will be nowhere. Okay? So oral communication, written communication, presentation skill, ये सब form of communication आपको मास्टर करने हैं. और ये सब मास्टर करना पॉसिबल है with practice. Practice, 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 practice. Okay? Don't give up. सिर्फ आप पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ये मिथ है. इस बबल को बर्स्ट करो, इसमें से निकलो. मेरे से ज्यादा अच्छे मार्क्स लिए हुए कितने सारे मेरे बैचमेट्स हैं जो आज मेरे 100 कदम पीछे. You need to be able to translate your knowledge. Okay? मेरे से या विशु सर से ज्यादा डिग्रीज लिए हुए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं जो आज इतने सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उनका नॉलेज का फ्लो ऐसे होता है, मैं मेरे लेवल से बात करेगा, बच्चा लोग मेरे लेवल पे आना चाहिए. अरे हर्ट, ऐसा थोड़ी होता है. टीचर का नॉलेज का फ्लो ऐसे होना चाहिए स्टूडेंट्स की तरफ. स्टूडेंट को फर्स्ट स्टेप कॉन्फिडेंस आना चाहिए टीचर के ऊपर कि चल भाई मेरे टीचर ने हाथ दिया है, चल मेरे साथ. बराबर. हर्ष राजपूत
You want to present in between. गलती से हुआ, I know. Then the third point, okay, हमने S self motivation and other work ethics लिया. दूसरा oral, written and other forms of communication, O, and now F, flexibility. It's extremely important to be flexible. You cannot say मैं ऐसा हूं, वो सिर्फ गाने में अच्छा लगता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, ये गाने में अच्छा लगता है, वो मूवीज में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं. You need to be flexible, you need to be adaptable. Companies will deliberately give you such situations where they will test whether you are adaptable or not. आप सिचुएशन के हिसाब से अपना अप्रोच चेंज करके, हम लोग सब क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में देखो ना, कब विकेट गया उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज होता है. सो उन्होंने सब कुछ सोच के रखा होता है कि फर्स्ट बॉल पे विकेट गया तो आगे वन डाउन कौन जाएगा. अगर 100 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप हुआ और 70 बॉल ही लगे और फिर विकेट गया तो कौन वन डाउन जाएगा. अगर 100 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप हुआ लेकिन 150 बॉल लग गए तो अपने को स्पीड में स्कोरिंग करना चाहिए, तो वन डाउन कोई और जाएगा, कोई तो भी पिंच हिटर को भेजेंगे, ठकाठक जो 20 बॉल में 50 मारेगा, फिर भले वो आउट हो गया तो भी चलेगा. You need to be flexible, you need to be adaptable. Okay, you have to understand that adaptability, flexibility is very important. आप में से मेजॉरिटी लोग लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो. कि हाँ भाई, मैंने बचपन में एक प्रेयर पढ़ा था, that God give me the strength to change the things which are in my control and give me the patience to endure the things which are beyond my control. Lockdown is beyond your control, beyond my control. You have no option but to face it. तो ये सिचुएशन है. आई नो आप फ्रस्ट्रेटेड है, आई नो आप अपने दोस्तों को मिल नहीं पा रहे, आप अपने महबूबा या महबूब को मिल नहीं पा रहे, बहुत बहुत चिड़चिड़ हो रहा है, पर ठीक है यार, यही दिवस जाते ही. अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो लॉकडाउन के बाद तुम्हारा प्यार और खुल जाएगा, एकदम बहरूनी, बराबर. सो गाइस, इफ यू आर विथ मी, इफ यू आर एंजॉयिंग और आपको हंसने को भी आ रहा है, तो आप उधर चैट बॉक्स में कहता स्माइली भी डाल सकते हो. मुझे भी तो मालूम पड़े कि आप लोग जाग रहे हो और आप सुन रहे हो, नहीं तो खाली अटेंडेंस मार्क करके बाजू में कुछ टाइम पास कर रहे हो तो मन ने कैसे समझ में आवेगा बच्चा पार्टी. सॉरी, बच्चा पार्टी बोलने का नहीं, यू आर ऑल यंग अडल्ट्स. ओके, मैं तो उस दिन 10वीं के बच्चों के साथ भी बात कर रहा था के क्लास के, तो मैंने बोला दीज आर यंग अडल्ट्स. हाँ, सो यार पता नहीं आपको विश्व सर ने बोला है क्या रिएक्शन देने का. नहीं सर, ऐसा कुछ बोला है? ओ विश्व सर, पहिला विश्व सर ही गायब है. विश्व सर वांगो. Okay, anyway, maybe he's busy with something else. And I'm sure when you have two daughters at home who are quite a powerhouse of energy, कभी कभी आपको बेटियां खींच लेती है दूर. I stay in a joint family. मेरे घर में 8 सदस्य हैं, 3 पीढ़ियां हैं. So my dad, respected शेटे sir, my mom, then my wife, my daughter जो अभी 10th का एग्जाम आधा नहीं ऑलमोस्ट दे चुकी है, ICSE बोर्ड में थी. And then my brother, his wife and his 7-year-old son, 6.5-year-old. तो मेरे घर में भी धमाल चलते रहता है. तो अभी मेरा जब ये सेशन स्टार्ट हो रहा था तब मेरे भतीजे ने, विहान ने मेरे को पूछा, बाबा, वो मेरे को बाबा बोलता है, सो बाबा ये तुझा मस्ती वाला सेशन आहे की सिरियस वाला आहे. म्हटलं का रे, म्हणजे मी येऊ की नाही समोर. तो मैंने उसको बोला नहीं, अभी वाले सेशन में तू नहीं आने का, 8 बजे जो मेरा सेशन है इंस्टाग्राम पे, उस पर तो आ सकता है. तो उसने बोला ठीक है, मी तोपर्यंत काहीतरी दुसरं करतो. तो आज का सेशन मेरा 8 बजे वही है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन. ओके, सो डू जॉइन दैट इफ यू आर फ्री एट 8 o'clock. सो माई इंस्टा ID इज आई एम अविरत. ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है गाइस. ओके, अभी जो अपना जो वर्ल्ड है ना, ये अपना जो वर्ल्ड है वो वूका है, वूका. You know what is VUCA? If somebody can type down, मैं एक एक नाम बोल रहा हूँ. V is volatile. V का मतलब volatile. Volatile मतलब क्या? जो कभी भी बदलता है, अचानक में भयानक कुछ भी हो जाता है. ओके,
वॉलेटाइल मीन्स सडनली चेंजिंग विदाउट वार्निंग, कुछ भी हो जाता है, अचानक तूफान आ रहा है, अचानक लोकस्ट आ रहे हैं, अचानक चाइना हमारे बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे कुछ तो भी एक्शन ले रहा है, अचानक ये कोरोना आ गया, फिर कुछ किधर इबोला वेनेजुएला में आउटब्रेक हो रहा है, वॉलेटाइल। देन यू फॉर अनसर्टन, यू फॉर अनसर्टन मतलब ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम, प्रेडिक्टेबल नहीं है, कोई बेट नहीं लगा सकता कि कल यही होगा या परसों वही होगा, आज जिंदा हो एंजॉय कर लो। सी फॉर कॉम्प्लेक्स, ओके, सी फॉर कॉम्प्लेक्स, वोलाटाइल, अनप्रेडिक्टेबल, कॉम्प्लेक्स। बहुत आपके मॉम डैड बोलते भी होंगे हमारे जमाने में दुनिया बहुत सिंपल थी, इतना टेंशन नहीं था, आमच्या वेळेला सगळं बरं होतं बाबा, या दादा दादी से सुना होगा, एम आई राइट? ये बोलते हैं कि अरे लाइफ वॉज मच सिंपल बैक देन, अभी कितना तुम्हारा टेंशन है लाइफ में, बरोबर? एंड दैट इज अ फैक्ट, लाइफ वॉज ईजियर, लाइफ वॉज सिंपल। बट देन अगेन उसका लोड लेने का क्या? नहीं, तुम और मैं बदल सकते हैं क्या कि तुम और मैं 2020 में इस एज में है? नहीं बदल सकते। आप लोग 90s में पैदा हुए, बदल सकते हैं क्या? नहीं, यू कैन विश एंड चेंज इट, सो एक्सेप्ट इट एंड एंजॉय इट। एंड ए फॉर एम्बिग्यूअस, हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, अपने को एम्बिग्यूअस पता है। एम्बिग्यूअस मतलब जिसकी कई अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, डबल मीनिंग, बराबर? सो ये जो वर्ल्ड है VUCA, वूका, वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस, इस वर्ल्ड में अगर आपको सर्वाइव करना है ना, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। द फोर्थ पॉइंट आपका सॉफ्ट स्किल में का चौथा पॉइंट है टी फॉर टीम वर्क। टीम वर्क, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, ओके? टीम का भी एक शॉर्ट फुल फॉर्म है टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो गाइज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आप और मैं सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, एक्सेप्ट व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम। वहां पर टीम वर्क करना बहुत रिक्सी होता है, बहुत रिक्सी, ठीक है? तो आप पढ़ाई कर रहे हो तब टीम वर्क करो, आप ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तब टीम वर्क करो, आप कोई टीम गेम खेल रहे हो तब टीम वर्क करो, बट टीम वर्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट यू नीड टू बी कोऑपरेटिव, आपने लोगों के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, यू नीड टू बी कोलैबोरेटिव, यू नीड टू वर्क टुगेदर। यू कैनॉट से हम करे सो कायदा, मैं ऐसा हूं, नो, यू हैव टू बी मर्जिंग विद द टीम। When India wins the World Cup, it is not तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जीता कि धोनी ने जीता कि युवराज ने जीता, इंडिया ने जीता, सिंपल एज दैट। अगर हेरम क्लासेस का टॉपर आया तो इट इज नॉट कि विशु सर की वजह से आया कि और कोई मैम की वजह से आया, हेरम की वजह से आया, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ द टीम। एंड इफ एनी पर्टिकुलर टीचर से मेरी वजह से हुआ देन वो डेंजरस है, ऐसा आदमी टीम के लिए बहुत डेंजर होता है। So we never say that it is because of me, it is because of we, it is because of us. So you have to be, you have to get along with everyone. आपके टीम में किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होगा, आपके टीम में किसी का रिलीजन या किसी का कास्ट अलग होगा, किसी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो कौन सा बंदा कैसे बिहेव कर रहा है ये आपको समझ के लेना पड़ेगा, स्पेशली इफ यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन। आप अगर एक लीडर की पोजीशन में हो तो आपका दिमाग की जगह होना चाहिए, घुटने में नहीं। घुटने में दिमाग होगा तो आप लीडर बनने के लायक नहीं है। ओके, सो 4 स्किल्स हो गए अभी तक। ओके, टीम वर्क उसमें का चौथा था। द फिफ्थ वन, आर यू विथ मी? आर यू एंजॉइंग दिस? आर यू हैविंग फन? कूल, थैंक यू सो मच। देन फिफ्थ वन, अगेन अभी आ गया स्किल्स, SOFT हो गया, अब SKILLS। तो S, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिलायबल। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिलायबल होना बहुत जरूरी है। सो सेल्फ डिसिप्लिन रिलायबल होना मतलब क्या? यू नीड टू बी रिलायबल, मतलब तुम भरोसेमंद होने चाहिए। डिसिप्लिन किसी ने मार मार के आने से अच्छा अंदर से अगर आता है तो बेस्ट है। US नेवी के एडमिरल थे, नाम मुझे याद नहीं,
बाय द वे मुझे याद है गोलकास्ट, ये नाम आप लिख के रखो, GOALCAST, गोलकास्ट। गोलकास्ट इज अ पेज ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आप उनके वीडियोस देखो। गोलकास्ट में मस्त आपको 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस मिलेंगे विच आर इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग। अलग अलग फील्ड के लोग हैं उस पे, फिल्म स्टार्स भी है उस पे, पॉलिटिकल लीडर्स भी है उस पे, बिजनेस लीडर्स भी है, सबके छोटे छोटे वीडियोस है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। सो गोलकास्ट के एक वीडियो में एक यूएस नेवी के एडमिरल ने बोला था, इफ यू वांट टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। रोज सुबह उठने के बाद अपनी चद्दर फोल्ड करो, अपना जो बेडशीट है उसको क्लीन, उसको मस्त चकाचक साफ करो, उसको साइड में टक इन करो कि खोदसा चादर सगड़ी करे। आप में से कितने लोग ये करते हैं? अभी मुझे हर एक दिन जवाब मत दो, बट बहुत सारे लोग नहीं करते, टीनेजर्स नहीं करते, मुझे पता है। जो लोग नहीं करते उनके लिए मैसेज है कि ये छोटी छोटी चीजों से मालूम पड़ता है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे या नहीं। हाँ, अब ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं कि तुम क्रिएटिव लोग रहेगा ना, तो क्रिएटिव लोग तो मेसी होते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा वर्क प्लेस मेसी रहेगा, ठीक है, बट सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। आप अगर एक सिंगर हो, आप अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर हो, तुम बोलेंगे नहीं मेरे को गाना सूझ ही नहीं रहा है, 3 महीने बाद गाना सूझेगा। अरे कौन प्रोड्यूसर तुमको हायर करेगा? हाँ, तुम बहुत जबरदस्त आइडियाज लेके आते हो, लेकिन तुम्हारा आइडियाज टाइम पे आना जरूरी है। हम टाइम बाउंड रहेंगे तो ही हमारा लाइफ आगे बढ़ने वाला है। अनलेस यू रीच टू सच ए लेवल इन लाइफ कि तुम बोलेगा ना 3 महीने रुकना पड़ेगा, तो सामने वाला रुकना चाहिए। वो लेवल पे तुम पहुंचने के बाद फिर तुम अपनी मर्जी के मालिक। बट ऐसे लेवल पे पहुंचना करोड़ों में एक आधे आदमी को जमेगा। आई विश कि अगर आपको वो लेवल पे पहुंचना है, आप जरूर पहुंचो। मैं टीचर हूँ, मैं अगर बोलूंगा मेरे को बहुत जबरदस्त आइडिया आ गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाने का, बट मैं अगले साल पढ़ाऊंगा। अबे वो 11वीं का स्टूडेंट है, उसके एग्जाम में अभी आने वाला है एमसीसी के पेपर में, तो अभी नहीं पढ़ाएगा तो क्या फायदा है अगले साल पढ़ा के? मेरा गुडविल का कचरा हो जाएगा, क्लास का नाम खराब हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, आप सेल्फ डिसिप्लिन होने चाहिए, और आप रिलायबल होने चाहिए, आप भरोसे लायक होने चाहिए। कंपनी को, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को तुम पे भरोसा होना चाहिए कि इसको काम दे दिया ना, बस याला काम दिलं किंवा हिला काम दिलं म्हणजे संपला विषय। इसको काम दे देने का और भूल जाने का, ये करके रहेगा। दिस पर्सन इज समवन हु इज 100% रिलायबल। आपका ऐसा नाम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सो तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा सुपर बॉस हो। मेरा कल्याण इसके एक स्टूडेंट जो सीए बन गया, सुंदर गणेश अय्यर, वो बंदे को 24 घंटे का मोहलत दिया था एक प्रेजेंटेशन बनाने को टाटा कैपिटल में। बनाया उसने, बनाया, रात भर जागकर काम करके गया। इवन व्हेन हिज लेग वाज इंजर्ड, वो पैर में स्लीपर पहन के गया। उनके ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि सूट बूट में ही प्रेजेंटेशन होगा, तो उससे बेचारे ने डेस्क के पीछे खड़े रह गया, अपना पैर दिखने नहीं दिया क्योंकि पैर सूज गया था, तो वो शूज पहन नहीं पा रहा था। उससे प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन इतना वाप हुआ, इतना रॉकिंग हुआ कि बाद में उसके बॉस ने, नहीं बॉस के बॉस थे, सुपर बॉस थे, उसको आगे बुलाया, तो थोड़ा डर डर के आगे गया क्योंकि स्लीपर पहनी थी। फिर बॉस से देखा, ये क्या हो गया? तो उसने बोला ऐसा ऐसा है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इंजरी है और मेरा पैर सूजा हुआ है। तो और ज्यादा तारीफ हुई। इसको बोलते डिपेंडेबल पर्सन, इसको बोलते रिलायबल पर्सन। आप भी अपने आप को ऐसे डेवलप करो। सो सिर्फ तुम्हारा हार्ड स्किल्स काम में नहीं आएगा, ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होने जरूरी है। तो एस हो गया। देन के फॉर काइंडनेस, के फॉर काइंडनेस एंड कर्टसी। काइंडनेस होना जरूरी है, कर्टसी होना जरूरी है, मैनर्स होना जरूरी है। यू नीड टू ग्रीट पीपल, यू नीड टू स्माइल, यू नीड टू से गुड इवनिंग, नॉट जस्ट टू योर बॉस। बॉस के तलवे चाटने नहीं है। तुम किसी भी आदमी को अगर चेक करना चाहते हो, अगर तुमने लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर देखा है, तो उसमें वो रेस्टोरेंट वाला सीन, वो लड़की अपने होने वाले मंगेतर से मिलने जाती है, तो बोलती है कि मैं इसको कैसे पहचानूं कि आदमी मेरे लिए सही है कि नहीं। तो बापू क्या बोलता है, चेक कर वो अपने से लोअर लेवल के लोगों से कैसे बात करता है। अगर वो वेटर को इज्जत से बुलाएगा तो अच्छा आदमी है। अगर वो वेटर को
ऐसा करके बुलाएगा तो समझ जाना कि आदमी सही नहीं है। और वो एक लिटमस टेस्ट, वो एसिड टेस्ट, वो बंदा फेल हो जाता है और वो लड़की को समझ जाता है कि भाई ये आदमी नहीं चाहिए अपने को। एम आई राइट? सो मैनर्स, एंड नॉट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल, एंड इट स्टार्ट्स एट होम। Start being respectful to your parents, to your grandparents, to your younger brother or sister. प्यार दो तो प्यार मिलेगा, जो देंगे वही मिलेगा। यूनिवर्स बड़ा फेयर है, यूनिवर्स इज वेरी फेयर। आप जैसा देंगे वैसा आएगा। फॉर एवरी डेबिट देयर इज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो यू गिव आउट अनकाइंडनेस, यू गिव आउट मैनरलेस बिहेवियर, तुमको भी वही मिलने वाला है। अब कोई बोलेगा सर मैं मेरे लाइफ में सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, लेकिन लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। देन इट इज टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अंतर आत्म परीक्षण करो, क्यों ऐसा होता है, किधर तो भी आपका गलती हो रहा है, या आप गलत लोगों को अच्छा बिहेवियर दे रहे हो। जो लोग डिजर्व नहीं करते अच्छा बिहेवियर, उनसे दूर रहने का। ऐसा लोग टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, पॉइजनस लोगों से दूर रहने का। बट चाणक्य ने बोला है अच्छा बनो, बौला मत बनो। बौला बनने का नहीं, बौला बनेगा तो तुम्हारे ऊपर रोड रोलर की तरह लोग जाएगा, रोड रोलर। चाणक्य सेज डोंट बी टू नाइव, NAIVE, नाइव मतलब भोला नहीं बनने का। बिकॉज द स्ट्रेट ट्री इज ऑलवेज कट फर्स्ट, सीधा पेड़ पहले कटता है। तो थोड़ा टेढ़ा रहने का, टेढ़ा है पर मेरा है। और अगर आपके अपने लोग हैं, जो आपका इनर सर्कल है, वो इनर सर्कल के साथ एकदम औसम बन के रहने का, उनके साथ आप एकदम शाना बनने का। बराबर है, खाली शाना बनने का बट डेढ़ नहीं बनने का। सो काइंडनेस दिखाना बहुत जरूरी है। ओके, देन स्किल्स का नेक्स्ट पॉइंट, आई, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब एनीबॉडी? बताओ बताओ। हाँ, ट्रू टू युअर सेल्फ, बरोबर साक्षी, परफेक्ट। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, जैसा बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो आदमी अपने बोलने के हिसाब से बिहेवियर भी रखता है, वो आदमी वंदनीय है, पूजनीय है। आस्क योरसेल्फ, डू यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच? इफ यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, you may be a nice person, you may be a kind person, you may be a great communicator, you may be having amazing manners, you may be a team player, you may be flexible, सब कुछ है, बट तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, सब गया गटर में। सब गया गटर में। वो उल्लासनगर का कैंप नंबर 5 के पीछे का जो बड़ा नाला है ना, उस नाले में गया। You have to be true to yourself. Otherwise, all your other skills are gone with the wind. They are down into the gutter. Understand this. अपने आप को आज रात को पूछना, इस सेशन होने के बाद अपने आप को पूछना कि आप इंटीग्रिटी वाले हो या नहीं हो। और अगर आपको जवाब आया नहीं यार, अपन साला बोलता कुछ है करता कुछ है, पापा को बोला था हेल्प करेगा, नहीं किया, दूसरे को भाषण झाड़ता है, खुद नहीं करता है, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? हिपोक्राइट। ऐसे लोग को बोलते हैं हिपोक्राइट, कि अपने लैंग्वेज में बोलने का तो डबल ढोलकी, बोलता है एक है करता दूसरा है। ऐसे लोगों को लाइफ में कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलता और मिलना भी नहीं चाहिए। ओके, सो इनफैक्ट मैं ऐसे लोगों की इज्जत करता हूँ जो सिंपल साला झाड़ू मारने का भी काम करता रहेगा बट परफेक्ट करता है, रादर देन जो बड़ा टोयोटा फॉर्च्यूनर में घूमता है लेकिन वो आदमी को इंटीग्रिटी नहीं है। तो ऐसे आदमी की मेरे नजर में कोई इज्जत नहीं है। आपको इज्जत कमाने का तो इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करो। ओके, आप बहुत बार आप पॉलिटिशियंस को गाली क्यों देते हो? ये मेन फैक्टर उनके अंदर नहीं है, इंटीग्रिटी। इलेक्शन के पहले बोलते कुछ है, बाद में होता कुछ है। बट अगेन पॉलिटिशियंस को दोष देके फायदा नहीं है मेरे प्यारों, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि है। वो जो 550 लोग उधर पार्लियामेंट में बैठे हैं, व्हाट आर दे आर आवर सैंपल। अपना सैंपल है, अपने में से निकाल के चुन के भेजा है। तो पॉलिटिशियन नालायक है क्योंकि हम नालायक है, पॉलिटिशियन झूठा है क्योंकि हम झूठा है, वो डबल क्योंकि हम डबल ढोलकी है। इट ऑल स्टार्ट्स विद अस। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट विद योरसेल्फ। चेक आउट अ सॉन्ग कॉल्ड मैन इन द मिरर। माइकल जैक्सन का एक गाना है मैन इन द मिरर। ओके,
लिरिक्स के साथ सुनना, बिकॉज माइकल जैक्सन बहुत ट्विस्टेड गाता है, तो उसके वर्ड्स है. सो if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make the change. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make the change. Na 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 na. जरूर सुनना होगा ना, जबरदस्त है. तो अपने अंदर बदलाव लाओ. आप अपने आप को इंटीग्रिटी के साथ चेंज करो, ढालो, तब दुनिया बदलने का सोचो. पहले अपने आप को बदलने का. ओके, यस. सो यस, Satish, is that Satish sir? I don't know. He has written, to improve the quality of written English, you must practice while you are texting. Avoid short forms. Yes, yes, it makes a big difference. It makes a big difference. Thank you, Rahul, for your compliment. Thank you, Uday. Thank you, Prerna. Then, the third last skill, L for lively, friendly, empathetic. Lively, friendly, empathetic. लाइवली होना मांगता है. किसको पसंद है सड़े हुए आदमी के साथ टाइम बिताना? डू वी लाइक टू स्पेंड टाइम विद सड़ा हुआ पीपल? आपके ग्रुप में, आपके गैंग में कोई अगर रोतलू है, तो वो रोतलू के साथ टाइम बिताना आपको पसंद है क्या? नो बडी लाइक्स अ रोतलू. बिल्कुल नहीं. अरे मान लो, अभी ये सॉफ्ट स्किल्स का सेशन, मान लो मेरे पास बहुत जबरदस्त नॉलेज है और मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ. सी माय डियर स्टूडेंट्स, you have to have soft skills and you have to be lively, very lively. कुछ भी हो जाए, lively होना बहुत जरूरी है. You have to be full of energy. एनर्जेटिक होना चाहिए, बहुत जोश होना चाहिए तुम्हारे अंदर. इतना जोश होना चाहिए कि मरा हुआ आदमी भी जाग जाए. अरे बाप रे, ऐसा मैं बात किया तो भी थोड़ी देर के लिए मैं सुस्त हो गया. सो लाइवली, यू नीड टू बी अ पावर हाउस. फुल पावर 24 आवर, फुल पावर 24 आवर. ऐसा होना मांगता है कि साला तुम्हारे साथ किसी ने बात किया, चैट किया, तुम्हारा कोई लेक्चर सुना, तुम्हारा इंस्टाग्राम फीड देखा, वो तुमको देख के उसके अंदर एनर्जी आना चाहिए. एनर्जी इज इन्फेक्शियस. योर एनर्जी शुड बी पास्ड ऑन. अब देखो, आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, तुम्हारी एनर्जी पे मैं भी फीड कर रहा हूँ. यू आर फीडिंग इन माई एनर्जी, आई एम फीडिंग ऑन योर एनर्जी. वन वे लेक्चर होता, बोर हो जाता, पक जाते, थक जाते. सो प्लीज मेक श्योर यू आर लाइवली. तुम ऑफिस में आए तो ऐसा लगना चाहिए साला बाहर आए, बाहर नहीं गए. हाँ, नहीं तो तुम आने के बाद लोग बोलेंगे अरे यार ये आ गया, बाहर चलो. ऐसा नहीं होना चाहिए. तुम आने के बाद बाहर आ जाने चाहिए. लोगों को लगने चाहिए वाह साला फ्रेश एनर्जी आ गया, ये ऑफिस में आया ना. ऐसा लगता है कि ऑफिस में एकदम एक एनर्जी की लहर दौड़ गई. दैट इज हाउ यू शुड बी. नॉट वन डे, नॉट 2 days, एवरी ब्लडी सिंगल डे. घर पे कुछ झगड़ा भी हो गया, लोकल में किसी से आनाकानी भी हो गई. यस, थैंक यू विपुल, थैंक यू लतिका, थैंक यू सतीश. सो आई एम सॉरी, सतीश है सतीश सर, मुझे नहीं पता. आई एम वेरी सॉरी. अगर मुझे बता दोगे तो I can address in the right way. So, Vishu sir, अगर आप Avi sir, he is a very good. He is your? Yeah, he is a very good friend of ours. Stays in Kalyan West. Not Satish sir. Okay, Satish, then I can address you by a singular name. Name is enough. अरे सतीश नाम ही काफी है. वाह. So, thank you so much. So, please make sure you are lively every single day. Every day. मेरा नाम है अविरत. Okay? अविरत. अविरत is a Sanskrit word which means perpetual. Perpetual, continuous. तो continuous energy होना चाहिए. You should be like a powerhouse. People look at you and they should be like, oh wow. People see you, people look at you, people look at the way you talk, people even just listen to you on phone. और तुमको सुन के उनको लगना चाहिए अरे यार ये आ गया ना बस. लाइवली होने का, फ्रेंडली होने का. एंड फ्रेंडली होना इधर से ही आता है, इधर से. आप दिखावे के लिए दोस्त बनेंगे ना, तो थोड़े दिन बाद, कुछ टाइम बाद लोग समझ जाएंगे कि आप फेक हो, आप मास्क पहनते हो. दिल को देखो, चेहरा ना देखो.
राजेश खन्ना का गाना है, किशोर कुमार ने गाया हुआ, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, हाँ दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो आप भी लाइफ में लोगों को जब परखते हो, जजते हो, मैं नहीं बोलता जज करो, नोबडी हैज राइट टू जज, बट लोगों को अपने लाइफ में एंट्री देते वक्त थोड़ा सा स्कैन करना जरूरी है भाई। जैसा कोरोना के लिए स्क्रीनिंग होता है, स्कैनिंग होता है। यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। यू सी माय वॉइस मे नॉट बी वेरी म्यूजिकल, बट आई सिंग फ्रॉम द हार्ट, तो डिलीवरी अच्छा आता ही है। किसी दिन फरहान अख्तर के लिए डबिंग करूँ, ये मेरा सपना है, जस्ट किडिंग, बिकॉज उसका और मेरा साउंड बॉक्स सेम है, फटा हुआ। हम दोनों का साउंड बॉक्स वैसे ही है, सेम टू सेम। सो देन तीसरा पॉइंट इसमें था एम्पथेटिक। एम्पथेटिक मतलब क्या? सिंपथी एक चीज होती है, एम्पथी दूसरी चीज होती है। एम्पथेटिक होना मतलब क्या? एनीबडी कैन यू टाइप इट डाउन? व्हाट डज इट मीन टू हैव एम्पथी? यस मोहनलाल जी, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। यस, एम्पथी किसी को पता है? एम्पथी, एम्पथेटिक? Yeah, that's amazing, Vinit sir. First homework given to students is to find meanings and understand their own name. That is a very good icebreaker also. Aditi says empathy matlab the ability to understand. Gopi Krishnan says sahanubhuti. Sahanubhuti matlab sympathy, okay? And Sakshi says empathy means ability to understand and share feelings. Aaron saying understandable. Samyukta says expressing. Pranjali is saying to understand someone's feelings. हाँ विजय सर, विनीत विजय, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। नमस्कारम गाइस। एम्पैथी का एग्जैक्ट मीनिंग सुनो, खुद को दूसरे के जगह पर रख के सोचना। एम्पैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, अरे अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, बट एम्पैथी मतलब आप उसका दर्द महसूस करो, आपको रोना है उसका दर्द देखकर, दैट इज एम्पैथी। सो अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो और आपके टीम मेंबर के साथ कुछ बुरा होता है, आप एम्पैथेटिक रहोगे तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे, उसके जड़ तक जा पाओगे और उसको हेल्प कर पाओगे। दैट्स व्हाई इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी एम्पैथेटिक, ओके? एंड एम्पैथी इज समथिंग दैट कैन बी डेवलप्ड। इन टुडेज रूथलेस वर्ल्ड वेरी फ्यू पीपल आर एम्पैथेटिक। इनफैक्ट अगर अपना कोई दोस्त है जिसको दूसरे को देखकर दर्द होता है, दूसरे का दर्द देखकर अगर उसको रोने को आता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ये क्या येड़ा है, क्या जरूरत है, वो उधर किधर तुम्हें किसी को लगा है, उधर कोई तो भी बाढ़ आ गई और लोग मर रहे हैं, उसका वीडियो देख के इसको रोने को आ रहा है, ये रहा है क्या? नहीं, यू शुड बी हैप्पी कि आपका दोस्त इतना एम्पैथी रखता है कि उसको सामने वाले का दर्द समझता है, और सामने वाले का दर्द को समझना और उसके हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू बिकम अ मैनेजर एंड इफ यू बिकम अ टीम लीडर एंड यू आर एम्पैथेटिक, तुम तुम्हारे टीम के एकदम लाडले बन जाओगे। वी ऑल्सो लव टीचर्स मोर। कोई टीचर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है लेकिन बहुत ज्यादा कड़क है, वो अपने को समझ के नहीं लेता है, होमवर्क नहीं किया तो बुरा भला कह देता है, उल्टा पुल्टा बोल देता है, ऐसे टीचर से ज्यादा कोई दूसरा टीचर जो थोड़ा कम अमेजिंग है, कम एक्सपर्ट है, लेकिन वो हमारा दोस्त है, वो हमारे दर्द को समझता है, वो हमारे साथ इस तरह से रहता है कि वो सर के साथ हम अपने लाइफ के सबसे डीपेस्ट सीक्रेट्स या हमारे कुछ प्रॉब्लम शेयर करते हैं। डोंट वी लव सच टीचर्स मोर? डोंट वी रिस्पेक्ट सच टीचर्स मोर? यस वी डू, बिकॉज दे आर एम्पैथेटिक। वो हमारा दर्द समझते हैं। आपको भी वैसे ही बनना है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, अगेन वन मोर एल, loves to encourage and is enthusiastic. Loves to encourage and is enthusiastic. Okay? So मेरे इंट्रोडक्शन में विशु सर ने आपको बोला आई एम हैप्पी सोल। अपन खुश मिजाज, अपन खुशी बांटता है। ओके? आपको भी वैसे ही रहना है। यू मस्ट बी someone who loves to encourage. Putting down people is very easy. लोगों को नीचा दिखाना बहुत आसान है,
लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना, उनको ऊपर उठाना, उनको अपने साथ आगे लेके जाना, इसको बहुत बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। स्पेशली अगर वो आदमी आपके लेवल का नहीं है, मेंटली अगर कोई वो आपसे नीचे है, उसका ढाढ़स बनाना, उसका कॉन्फिडेंस बनाना और उसको साथ में ले, चल मैं हूं तेरे साथ, लढ, मी आहे तुझ्या पाठीशी, मी आहे तुझ्या सोबत, ये बोलने को बहुत ज्यादा गट्स लगता है। अगर अपने कोई आगे जा रहा है, उस आदमी के सक्सेस को सेलिब्रेट करना बहुत बड़ा दिल लगता है, क्योंकि जलन नाम की चीज बहुत डेंजरस होती है, वो तो आ ही जाती है। उस जलन से दूर रहने का, यू शुड बी एबल टू सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस ऑल्सो। एंड इनफैक्ट मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास, आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, उनकी सक्सेस पे जलने से अच्छा आप उनको जाके पूछो कि ये सक्सेस आपने कैसे हासिल किया। नॉर्मली जो आदमी सही रास्ते से सक्सेस अचीव करता है, वो अपना सक्सेस का फॉर्मूला शेयर करता ही है। जो गलत रास्ते से सक्सेसफुल होता है, वो हिचकिचाएगा बताने को। But people who achieve success through the right means and ways, they will always be ready to share the mantra for success. Just like Vishu sir is doing, just like I am doing. We are not having any insecurity कि मैं सब कुछ इनके साथ शेयर करूंगा। अब वैसे देखो तो विशु सर और मैं कॉम्पिटिटर्स है, उनका कल्याण ईस्ट में क्लास है, मेरा कल्याण वेस्ट में। अगर इनसिक्योरिटी होता तो मैं इस सेशन में कभी आता नहीं। उनको अगर इनसिक्योरिटी होता कि अभी सर ये सेशन में आएंगे तो मेरे 4 स्टूडेंट लेके जाएंगे, हाँ कम ऑन, जो मेरे नसीब में वो कौन लेके जाएगा, जो उनके नसीब में वो मैं कहाँ से लेके जाऊंगा। कल को मेरे सामने कोई क्लास खोलता है, मेरे 1-2 स्टूडेंट्स ने शेटेस के सामने क्लास खोला है, हमने उनको गाइड किया है। विशु सर को शेटे सर ने गाइड किया था जब क्लास चालू किया था, तो उनका खुद का स्किल तो है ही, बट हर इंसान को एक मेंटर लगता है। वी आर लकी, मी एंड विशु सर आर लकी कि हमको शेटे सर, नायर सर, राजगोपालन सर ऐसे बाप मेंटर्स मिले, जिनके आज भी कभी वो हमारे सामने आते तो सीधा झुक के हम पैर छूते। कधी त्या सरांना आधी शेकहँड नाही करत, आधी पाया पड़तो। ये इज्जत आपको भी कमानी है। जहां कहीं जिस किसी फील्ड में जाएंगे, आपको ऐसा मान मर्तब मिलना चाहिए, ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट इज टू बी कमांडेड, इट इज नॉट टू बी डिमांडेड। डिमांड करते वो हिटलर जैसे होते हैं, कमांड करना चाहिए। तुम गए तो लोगों ने सलाम ठोकना ही चाहिए। And I wish you will also achieve that kind of success. And you have to be enthusiastic. रिचर्ड ब्रांसन ये नाम नहीं सुना होगा तो दुनिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, फॉर्च्यून 500 में इनका भी नाम है। ओके, इनका जो ग्रुप है वर्जिन ग्रुप, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स, 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज है। इनकी एक किताब है, स्क्रू इट लेट्स डू इट, स्क्रू इट लेट्स डू इट। तो उनकी वो फिलॉसॉफी है लाइफ में, उनके कंपनी की, उनके ग्रुप की फिलॉसॉफी है, एखादी गोष्ट करायचं ठरवलं ना, बास आली लहर केला कर, घुस जाने का, भिड़ जाने का, फिर देखेंगे आगे क्या होता है, कॉम्पिटिटर क्या करते हैं और गवर्नमेंट का क्या है। करायचं ठरवलं ना, करायचं बस। ओके, एंड देन द लास्ट पॉइंट, एस, स्किल्स का एस, सेल्फ अश्योर्ड एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड। Self-assured and professional attitude. You should be having a kind of self-assurance. Self-confident होना जरूरी है, self-assurance होना जरूरी है। आपको देखकर लोगों को लगना चाहिए यार, दिस इज वन पर्सन जिसको देखते ही कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आपके लाइफ में भी ऐसे आपके मॉम होगी, आपके डैड होंगे, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे, आपके टीचर्स होंगे, उनको देखकर आपको एक फीलिंग आता है यार, इनको देखा ना तो मेरे प्रॉब्लम्स दूर भाग जाते, बस यांचं दर्शन झालं तरी भारी वाटतं। आपको भी वैसे बनना है। ओके, आपको ये स्किल्स अचीव करने हैं, दे विल बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रैक्टिस कर करके। एंड प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ऐसा शर्ट पहन के जाने का नहीं है। मैं अगर ये कोई रोटरी क्लब का है कोई ऐसा प्रोग्राम होता तो शायद मैं फॉर्मल शर्ट पहन के आता। यू हैव टू बी बिजनेस लाइक, पीपल शुड नो that you are serious about what you are doing. Okay, please understand that you need to have a professional mannerism. आपका मेल ड्राफ्टिंग, आपका ड्रेसिंग, आपका लुक, सब कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए।
तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। ओके, एंड एक सिंपल सजेशन आपको देता हूँ कि जब आपका कोई कोई फ्रेंड होगा, बहुत एक्चुअली एक स्टोरी बताता हूँ। देर वाज अ फ्रेंड जिससे अपने 3-4 दोस्तों को बहुत हेल्प किया, और उनको लाइफ पे स्ट्रगल जब कर रहे थे तो बहुत हेल्प किया, उनको फाइनेंशियल हेल्प किया, किसी का जॉब लगा के दिया, किसी के बच्चे का एडमिशन करा के दिया। तो उस दोस्त के बारे में 2 फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे। तो एक फ्रेंड बोलता है, यार काश अपना भी ऐसा कोई दोस्त होता। दूसरा दोस्त मुस्कुराता है, ये पूछता है क्यों मुस्कुरा रहा है, कुछ गलत बोला मैंने? मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, काश मैं ऐसा दोस्त होता। व्हाट एन अमेजिंग इनसाइट। एटीट्यूड देखो, गिवर एटीट्यूड है, गिवर, गिविंग का एटीट्यूड रखो। उसने ये नहीं सोचा कि यार मेरे पास ऐसा दोस्त होना चाहिए, वो बोलता है साला मैं ऐसा दोस्त होना चाहिए। तो देखो ना, अपने आप वो पहले बड़ा बनने ही वाला है, वो पहले बड़ा बनने ही वाला है, वो एक अचीवर बनने ही वाला है, और फिर वो लोगों को हेल्प कर पाएगा। बट उसकी थॉट छोटी नहीं है, उसकी सोच छोटी नहीं है, उसकी सोच ऐसी है। वो बोलता है कि मैं काश ऐसा दोस्त बन पाऊं, तो अपने आप तो वो बड़ा बन ही गया। There is a prayer which my Muslim friends have told me about. अल्लाह मेरा खर्चा बढ़ा। मुस्लिम लोगों का एक प्रेयर है, अल्लाह मेरा खर्चा बढ़ा। इसका मतलब क्या? इनकम तो अपने आप बढ़ेगा ही ना पहले। कितना पॉजिटिव प्रेयर है, ऑसम है। और याद रखो, आई एम नॉट रिलीजियस, ओके, मैं वो सब मानता ही, आई एम ह्यूमन। तो मैं जिस रिलीजन से, हिंदुइज्म से, इस्लाम से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, क्रिश्चियनिटी से, जिससे जो सीखने को मिलेगा सब मेरा है। हे विश्वची माझे घर, 700 साल पहले ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला था, 16 साल का टीनेजर भी नहीं हो पाया और उन्होंने बोला था, हे विश्वची माझे घर, दिस होल वर्ल्ड इज माई होम। ऐसा अप्रोच होना चाहिए। ओके, सो आई विल एंड माई सेशन बाय अगेन अ सॉन्ग, एंड आप सब लोग यही अप्रोच लाइफ में रखना। किशोर कुमार मेरा फेवरेट सिंगर है, एकदम मेरे फेवरेट सिंगर है, सॉरी, बहुत बड़े आदमी है। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। एक स्टैंजा भी इसका, जिंदगी को देखो कैसे बोल, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, ला 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 ला। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। I hope I have added some value and I have made you take some action. Okay, सिर्फ ये लेक्चर सुन के आप कल सुबह इसको भूल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। यू नीड टू टेक एक्शन। आज जो हुआ है वो सिर्फ आधा काम हुआ है, आज सिर्फ डेबिट हुआ है, क्रेडिट तब होगा जब आप इस पे एक्शन लोगे। तो प्लीज फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करो और डबल एंट्री को पूरा करो। थैंक यू। Superb. The comments itself says that each one present enjoyed this session to the core. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी सर you could take out time, you could share your knowledge with all the students, and as we can see in the chat box, everyone is definitely taking back many more things. And as Avi sir rightly said, this world is nothing of competition. There is no word as such competition. ये competition बहुत छोटे लोग सोचते हैं. The world is full of cooperation. ठीक है.
तकदीर कोई चुरा के नहीं लेके जा सकता. And do your hard work, and definitely you will get your share of success. Thank you so much, Avi sir. I know it's 7:39. You have to go live at 8 o'clock. All the best for Yes. your session. And we Thank you, conclude sir. here requesting all participants to fill in the feedback form as usual. And फ्राइडे के दिन जैसा मैंने बताया था, we will be having a session again which is related more